In this video we shall study about the nitrogen fixation. But before starting the discussion about nitrogen fixation, we must know that what is the importance or role of nitrogen for the plant. We know that nitrogen is one of the most important element for any living organism because nitrogen is the constituent of protein, amino acid, nucleic acid, and it also involved in the synthesis of chlorophyll. And all these molecules are very important for the cell. For example, if we talk about the proteins, then we know that proteins are the building block of the cell because most part of the cell or most component of the cell is made up of the proteins. And protein perform enzymatic role by which it catalyzes most of the reaction that take place within the cell. So nitrogen is the element which perform very important role for a living organism. It involved directly in the growth and development of a living organism or plant. So if there is a deficiency or inadequate supply of nitrogen, then plant growth reduce very much. Such reduced growth is called stunted growth. Stunted growth. Stunted growth means reduced growth. Hence, nitrogen is very important for healthy growth or better growth of the plant and high productivity. We know that in the recent year, productivity of crop field increased many times. It is due to the many of reason, and one of the reason is the use of nitrogenous fertilizer. If we supply nitrogen fertilizer to the crop plant, then this fertilizer fulfill nitrogen requirement. So it ensure a better growth and high productivity. Hence, productivity of crop field is related to the availability of nitrogen or nitrogenous fertilizer. Nitrogenous fertilizer provide nitrogen to the plant, and nitrogen ensure their better growth and high yield. Now, important things that how plant obtain nitrogen. How plant obtain their nitrogen? It is the important question or things that how plant obtain their nitrogen. In the nature, nitrogen occur in the many form. But one of the most important and large reservoir of nitrogen is the atmosphere. In atmosphere, about 78% nitrogens are found. But this nitrogen is not directly utilized by the plant. And this atmospheric nitrogen exists in the form of nitrogen gas or dinitrogen gas. And this nitrogen gas is not directly utilized by the plant. But if this dinitrogen or nitrogen gas is converted into the nitrate or ammonia, then it can be utilized by the plant. And this process is called nitrogen fixation. Hence, we can define nitrogen fixation is a process by which atmospheric nitrogen converted into the ammonia or nitrate or other any nitrogenous compound so that they can utilize by the plant. It's called nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये जो आपका जो डाई नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या किसी प्रोसेस के थ्रू, या नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि प्लांट इसका यूटिलाइजेशन कर सकें, तो इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन
into the ammonia or nitrate or other nitrogenous compound so that it can be utilized by the plant is called नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है आपका नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और सेकेंड टाइप जो आपका होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिस्कशन केमिस्ट्री में किया जाता है, नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिस्कशन बायो में करते हैं। नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन को फर्दर 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। ए बाय लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेते हैं और फिर ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड जो है आपका ग्राउंड पे गिरता है तो वहाँ पे सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं उससे कंबाइंड होकर के नाइट्रेट साल्ट बना लेता है। अब ये नाइट्रेट साल्ट प्लांट को अवेलेबल होता है, प्लांट इस नाइट्रेट साल्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं बाय लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग। इसमें क्या होता है, जब लाइटनिंग के समय में हाई टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही कम रिएक्टिव गैस होता है। नाइट्रोजन में जो आपका देखिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए। तो लाइटनिंग के समय में जो हाई टेम्परेचर होता है या वहाँ पे जो हाई एनर्जी मिलती है, इससे नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट जाते हैं और नाइट्रोजन एटम फ्री होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना लेता है। और ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फिर वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। जब नाइट्रिक एसिड बन जाता है तो ये रेन वाटर के साथ जो है आपका ग्राउंड पे आता है और ग्राउंड पे आने पे जो है जो ग्राउंड के जो मिनरल्स होते हैं उससे कंबाइंड होकर के ये जो नाइट्रेट साल्ट बना लेता है या नाइट्रेट मिनरल बना लेता है। अब ये नाइट्रेट मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं जिससे उनको नाइट्रोजन की सप्लाई होती है। दूसरा जो होता है आपका जो है बी बाई फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जितना भी जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरल मेथड से होता है उसका 8% लाइटनिंग के थ्रू होता है, 2% जो होता है आपका बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है और जो 90% होता है ये सी है बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अबाउट 90% होता है। 90% ये जो है इंडस्ट्रियल का नहीं है, बस हम इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं। नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 90% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है, 8% लाइटनिंग के थ्रू होता है और 2% बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। नाउ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कुछ ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे राइजोबियम है, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, इनमें जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसके हेल्प से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन को ये जो आपका अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं।
तो अगर किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाए या ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए जिसे प्लांट यूज कर सकें, तो ये आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, जो नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। ये किसी दूसरे प्लांट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में नहीं होते हैं। ये अकेले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करते रहते हैं। इनकी जो होती है, इनको फर्दर इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। देखिए, एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जो ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आते हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने रिस्पायरेशन के लिए, और ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसी प्लांट के साथ होना जरूरी नहीं है। ये अकेले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं या करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर एक एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में पाया जाता है और एक इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेसर होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड को सॉइल में रिलीज करता है, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही जो है आपका जो है नेक्स्ट जो एग्जांपल है एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का, बेंजरनिकिया। ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है और एरोबिक फ्री लिविंग होता है। डायरेक्जिया भी इसी कैटेगरी का है। सेकेंड है एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सेकेंड जो कैटेगरी है वो एनएरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होती हैं। ये एनएरोबिक होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन के लिए नहीं यूटिलाइज करते हैं। ये एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। और ये भी जो है आपके अकेले ही विदाउट एनी सिम्बियोटिक एसोसिएशन के कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो है। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म होता है। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरियम होता है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। ये एनेरोबिक होता है लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लेकिन जो है आपका एनेरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और थर्ड जो कैटेगरी है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ये एक ग्रुप होता है वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिजम्स का। इक्वेटिक है, ये इक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं जहां वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहते हैं। और इस तरह से जो है ये जो आपका जो है जो टोटल ग्लोबल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। एक एस्टीमेट ये बताता है कि जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को राइस फील्ड में जो है ग्रो कराया जाता है तो वहाँ पे जो है वो इतना इनफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजर भी जो है उसकी गुड ग्रोथ होती है या गुड यील्ड वहाँ पे होता है। इसलिए इनका यूज जो है मॉडर्न डे में बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसका यूज इसलिए करते हैं कि क्योंकि जब हम इसको जो है राइस फील्ड में जो है राइस के साथ अगर ग्रो कराते हैं तो वाटर में ग्रो करेंगे और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिलीज करेंगे जो राइस फील्ड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। राइस फील्ड के साथ साथ इसे दूसरे जो है क्रॉप के साथ भी जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। सेकेंड है आपका जो है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस कैटेगरी में आने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं,
जब तक कि ये किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड ना हो। तो इस तरह से ये जो है आपके किसी प्लांट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह करके ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाते हैं। इसमें जो आपका पहला जो आपका कैटेगरी है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट बाय राइजोबियम। इस कैटेगरी का जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, जो आपके लेगुमिनस प्लांट जो पल्स सील्डिंग प्लांट होते हैं, जैसे पी है, ग्रैम है, सोयाबीन है, कैजनस है, अल्फा है, तो ये बैक्टीरियम इनके रूट्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है और उसी रूट नोड्यूल्स में ये जो रहता है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता रहता है। प्लांट को ये नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड करता है और प्लांट उसके बदले में शुगर और नेसेसरी मटेरियल बैक्टीरियम को प्रोवाइड करता है। तो जो राइजोबियम स्पीसीज होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगुमिनस प्लांट में करते हैं थ्रू रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू। बैक्टीरिया जो है आपका रूट नोड्यूल में ही रहता है जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और ये बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है थ्रू रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। सेकेंड जो कैटेगरी आती है जो है, इस कैटेगरी में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फ्रैंकिया होता है, ये भी रूट नोड्यूल बनाता है लेकिन नॉन लेगुमिनस प्लांट में, पल्स प्लांट में नहीं। जो नॉन लेगुमिनस प्लांट मतलब जो लेगुमिनेसी फैमिली में नहीं आते हैं या जो पल्स सील्डिंग नहीं होते हैं, जैसे ये जो है आपका रूट नोड्यूल बनाता है एल्डर एक ट्री होता है, कैजुराइना में, डेस्टिका में, एलनस में। फ्रैंकिया जिन प्लांट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है इन प्लांट को एक्टिनोराइजल प्लांट कहते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ये नॉन लेगुमिनस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसे बैक्टीरियम का नाम बताइए जो नॉन लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है थ्रू रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, तो इसका जो है आपका आंसर फ्रैंकिया होगा। थर्ड जो कैटेगरी होती है विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन, इस कैटेगरी में जो है आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में तो होता है, लेकिन जो है ये आपका जो है नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं इसमें करता है। इसमें एग्जांपल है एजोला। एजोला एक टीनी वाटर फर्न होता है और इसमें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना होता है जो इसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है। एजोला को जो है हम पैडी फील्ड में या राइस फील्ड में भी उगा सकते हैं। एक टीनी वाटर फर्न होता है जहाँ पर जो है इसमें जो प्रेजेंट जो साइनोबैक्टीरिया एनाबीना है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है। एक एस्टीमेट ये बताता है कि पर डे ये 1/2 kg नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है प्रोड्यूस कर सकता है 1 हेक्टेयर राइस फील्ड में। इस तरह से इसका यूज जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक फर्न का नाम बताइए जो एज ए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है तो एजोला इसका आंसर होगा। एजोला का यूज बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसलिए किया जाता है क्योंकि एनाबीना नाम का ब्लू ग्रीन एल्गी इसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है। ऐसे ग्यूनेरिया एक अमेरिकन हर्ब होता है, इसके साथ जो है नास्टाक का सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होता है और इन प्लांट में जो आपका नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। कोरिलोइड रूट साइकस में पाई जाती हैं जिसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है क्योंकि इस रूट में नॉस्टाक या एनाबीना। एनारोबिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू होती है और ये जो एंजाइम हाईली सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन इस एंजाइम को डैमेज कर देता है या इनएक्टिव कर देता है जिससे अपनी कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता है। इसलिए इस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए एनारोबिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। इसलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को या तो एनारोबिक कंडीशन में करते हैं या अगर एनारोबिक कंडीशन नहीं होता है तो जो है लोकल एनारोबिक कंडीशन या माइक्रो एनारोबिक कंडीशन वो क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो है ब्लू ग्रीन एल्गी की,
If we talk about blue-green algae, blue-green algae, तो blue-green algae नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए या तो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या कुछ है जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें एक सेल हेट्रोसिस्ट नाम का सेल पाया जाता है। और ये जो हेट्रोसिस्ट नाम का जो सेल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और ये एक थिक वॉल्ड होता है जिसके कारण ऑक्सीजन गैस इसमें जो है इंटर नहीं कर पाता है, और इस हेट्रोसिस्ट के अंदर जो है एनारोबिक कंडीशन आपकी जो है क्रिएट हो जाती है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये इसकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, और ये जो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट की वॉल जो होती है थिक होती है और ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होती है। हेट्रोसिस्ट जो है सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है और इसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। अब इसके अंदर हेट्रोसिस्ट के अंदर ये एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए इसकी जो थिक वॉल होती है ये ऑक्सीजन के लिए वॉल को इम्परमिएबल बनाती है, जिससे इसमें ऑक्सीजन आपका एंटर नहीं कर पाता और इसके अंदर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है। भले ये एल्गा जो है एरोबिक कंडीशन या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है आपका ग्रो कर रहा है, लेकिन इस हेट्रोसिस्ट के अंदर जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ऑक्सीजन जो है आपकी एब्सेंट होती है और यहाँ एनारोबिक कंडीशन होता है, ताकि नाइट्रोजनियस एंजाइम ऑक्सीजन के कारण डैमेज ना हो। दूसरा इसमें जो होता है फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड का काम होता है वाटर की फोटोलाइसिस कर ऑक्सीजन को क्रिएट करना, तो इसलिए इसमें हेट्रोसिस्ट में फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, जिससे जो है आपका जो है इसमें ऑक्सीजन जो है आपका क्रिएट नहीं हो पाता है और नाइट्रोजनियस एंजाइम डैमेज नहीं होता ऑक्सीजन के थ्रू। अगर हम बात करें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करता है रूट नोड्यूल की प्रोसेस के थ्रू। तो रूट नोड्यूल्स में जो है आपका लोकल या माइक्रो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है। ऐसा कैसे अचीव होता है? देखिए जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इस बैक्टीरिया के नाइट्रोजनियस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है दो मैकेनिज्म होती हैं। पहला जो मैकेनिज्म होता है कि जो रूट नोड्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है, और रूट नोड्यूल की जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के लिए वेरी लो परमिएबल होती हैं। इसलिए जो है इस सेल्स के अंदर जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो होती है। बस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी रखी जाती है कि बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके, और कॉन्सेंट्रेशन इतना लो रखते हैं कि नाइट्रोजनियस एंजाइम डैमेज ना हो। दूसरा जो होता है इस रूट नोड्यूल की सेल में एक हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट्स होता है या प्रोटीन होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेग मतलब लेग्यूम और हीमोग्लोबिन,
ग्लोबिन, ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर का काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है रूट नोड्यूल्स की सेल्स में होता है और ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है। अगर ऑक्सीजन जो है आपका रूट नोड्यूल की सेल्स में इंटर कर जाता है तो लेग हीमोग्लोबिन इससे बाइंड हो जाता है, जिससे जो फ्री ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें सेल्स में, सारा जो भी ऑक्सीजन होता है वो लेग हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और एक रेड कलर का हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, जो रूट नोड्यूल की जो सेल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन को ये बाइंड कर लेता है और ये ऑक्सीजन को जो है बैक्टीरिया को सीधे ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो है बैक्टीरिया को एक लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की होती रहती है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई इस तरह से होती है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो डैमेज नहीं होने पाता है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके सीधे ऑक्सीजन को बैक्टीरिया के राइजोबियम बैक्टीरिया के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है आपका जो है डैमेज नहीं होने पाता है। इस तरह से हम ये जो है देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है एनारोबिक कंडीशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है टू ऑक्सीजन के कारण जो है ये डैमेज हो जाता है या इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस हो जाती है। इसलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो एनारोबिक कंडीशन पे ग्रो करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए माइक्रो या लोकल आपका जो है एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने अभी बताया रूट नोड्यूल्स की जो सेल्स होती हैं ऑक्सीजन के लिए काफ़ी लो परमिएबल होती हैं और इसमें लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट होता है और ये ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है। ऑक्सीजन जो भी उसमें इंटर करती है रूट नोड्यूल सेल्स में उसको ये बाइंड कर लेता है और बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम इस ऑक्सीजन के थ्रू डैमेज न हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है कि एनारोबिक कंडीशन की ज़रूरत क्यों होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम प्लांट में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लेग्यूम प्लांट में जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है रूट के अगल बगल की जो इन्वायरमेंट होती है जिसे राइजोस्फीयर्स कहते हैं, वहीं पे ये जो है आपका रहता है और ये जो है वहाँ पे जो है ग्रो करता है। अकेले न तो बैक्टीरियम या जो आपके लेग्यूम प्लांट होते हैं अकेले कोई भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है, दोनों का सिम्बियोटिक एसोसिएशन जरूरी होता है। इसके लिए जो है बैक्टीरिया आपका जो है लेग्यूम प्लांट के रूट में इन्फेक्शन करता है और वहाँ पे जो है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और फिर जो है रूट नोड्यूल का जब फॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में ही रहता है जहाँ पे सिम्बियोटिकली वो एसोसिएटेड होता है प्लांट के साथ और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करता है। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है इन्फेक्शन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन और जो दूसरा पार्ट होता है बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले हम जो है इन्फेक्शन और नोड्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पहले एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया की तरह से रहता है जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को नहीं कर रहा होता है और ये जो है रूट के अगल बगल ही रहता है जिसे हम राइजोस्फीयर कहते हैं। रूट के अगल बगल का जो आपका जो है इन्वायरमेंट या स्पेस राइजोस्फीयर कहलाता है। जो आपकी रूट होती हैं या जो ग्रोइंग रूट हेयर होता है ये केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करता है। इस केमिकल अट्रैक्टेंट के इफेक्ट के कारण जो है बैक्टीरिया रूट हेयर के पास जो है ये आपके जमा होते हैं और वहाँ डिवाइड होते हैं। उसके बाद जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है
नोड्यूल फैक्टर रिलीज करता है। नोड्यूल फैक्टर के इफेक्ट के कारण जो है आपका रूट हेयर की कर्लिंग ग्रोथ होती है, मतलब रूट हेयर ऐसे कर्ल कर जाता है, और जो यहाँ पे कंपार्टमेंट क्रिएट होता है इस कर्ल में, इसमें जो है बैक्टीरिया तेजी से जो है आपका मल्टीप्लाई या प्रोलिफरेट करता है। उसके बाद नोड्यूल फैक्टर के इफेक्ट के कारण जो रूट हेयर की सेल वॉल होती है डिग्रेड हो जाती है और बैक्टीरिया रूट हेयर में इंटर कर जाता है। जब रूट हेयर में इंटर करता है तो नोड्यूल फैक्टर के इफेक्ट के कारण जो है रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ग्रो करती है और इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है, और ये इस इन्फेक्शन थ्रेड में बहुत सारे जो हैं आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो तेजी से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है फर्दर ग्रो करता है, क्योंकि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वेजिकल इस इन्फेक्शन थ्रेड से आके मिलती रहती हैं, जिससे इसकी इन्फेक्शन थ्रेड की मेम्ब्रेन ग्रो करती हैं और फाइनली ये जो रूट हेयर सेल में पहुंच जाती हैं। रूट हेयर सेल के बाद जो इन्फेक्शन थ्रेड रूट हेयर सेल को पेनेट्रेट करके कॉर्टेक्स में इंटर करता है। जब इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है उसी समय जो है डीप इन द कॉर्टिकल रीजन आपके नोड्यूल प्राइमोडियम बनते हैं। कुछ सेल जो होती हैं तेजी से जो है वहाँ पे जो है आपकी जो है डिफरेंशिएट होती हैं और वो आपकी जो है रूट नोड्यूल प्राइमोडियम या नोड्यूल प्राइमोडियम सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। इन्हीं सेल से फाइनली जो है आपका रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है कॉर्टेक्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है और जो है आपका नोड्यूल प्राइमोडियम सेल तक पहुंचता है। जो आपका इन्फेक्शन थ्रेड के फर्दर ब्रांचिंग के कारण बहुत सारे जो हैं आपके जो कॉर्टेक्स सेल होते हैं जो आपके नोड्यूल प्राइमोडियम को बनाते हैं, उसमें जो है बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। फाइनली जो है बैक्टीरिया जो होता है इस जो है आपके कॉर्टेक्स सेल्स में जो आपका रूट नोड्यूल को बनाती हैं उसमें रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कुछ कॉर्टेक्स सेल का स्ट्रक्चर हमने शो किया है जहाँ पे जो है बैक्टीरिया उसमें सेटल हो चुका है या इन्फेक्शन कर चुका है। देखिए ये जो कॉर्टेक्स सेल है और जो बैक्टीरिया होता है आपका इस जो कॉर्टेक्स सेल में या रूट नोड्यूल के सेल्स में जो है ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू इनक्लोज होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं आपके रूट नोड्यूल सेल या कॉर्टिकल सेल्स में जो है आपका एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है इनक्लोज होते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होता है हॉस्ट सेल या लेग्यूमिनस प्लांट के सेल के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेम्ब्रेन को हम पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। शुरू में ये जो आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, प्रोलिफरेट करते रहते हैं। बाद में जो है हॉस्ट प्लांट के थ्रू जो है जब ये आपके कॉर्टिकल सेल्स में इंटर कर जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं या इन्फेक्शन कर चुके रहते हैं, तो इसके बाद जो है हॉस्ट सेल जो है कुछ सिग्नल आपका रिलीज करता है जिससे ये मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल में जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। इन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल को हम जो है बैक्टीरियोइड्स कहते हैं। तो जो बैक्टीरियोइड होता है कॉर्टिकल सेल में जो है मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है, फ्री नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होते हैं और ये मेम्ब्रेन हॉस्ट सेल के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इसे पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर से लेग हीमोग्लोबिन को शो किया है। जो ये आपका जो बैक्टीरियोइड होते हैं जो इनक्लोज होते हैं पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन से, ये सब जो है बाधित होते हैं लेग हीमोग्लोबिन से। और लेग हीमोग्लोबिन का हमने आपको फंक्शन बताया कि जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का स्क्वेंजर होता है और ऑक्सीजन को बाइंड करके बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सीधे जो आपका ट्रांसफर करता है ताकि जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के द्वारा डैमेज ना हो। और इस तरह से फाइनली जो बैक्टीरिया जो होते हैं आपके जो है कॉर्टिकल सेल में सेटल हो जाते हैं और यहाँ की जो कॉर्टिकल सेल जो आपकी नोड्यूल प्राइमोडियम को बनाती हैं वो तेज़ी से डिवाइड होती हैं और जो है रूट नोड्यूल को डेवलप कर देती हैं। और फाइनली जो रूट नोड्यूल के अंदर जो है ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोइड फॉर्म में आ जाता है
और ये बैक्टीरियोइड जो फॉर्म होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ये फिर मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को आपका जो है स्टार्ट कर देता है। अब हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली इस प्रोसेस में नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में कर दिया जाता है और नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए जो है हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि इस रिएक्शन में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है 16 एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और ओवरऑल रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिएक्शन से क्लियर है कि एक मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए 8 हाइड्रोजन आयन, 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है और इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। इस हाइड्रोजन गैस को फिर से हाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के हेल्प से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिया जाता है और ये जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन फिर से अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन का रिडक्शन करने के लिए और ये ओवरऑल रिएक्शन कैटेलाइज होती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के थ्रू। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ पे हमने जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स का हमने जो है लाइन डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से क्लियर है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं उसको 2 कंपोनेंट में हम बांट सकते हैं, कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकेंड। कंपोनेंट फर्स्ट को आयरन प्रोटीन कंपोनेंट कहते हैं और कंपोनेंट सेकेंड को मॉलिब्डेनम आयरन कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट फर्स्ट को आयरन प्रोटीन कंपोनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। ऐसे जो कंपोनेंट जो है सेकेंड में जिसे हम मॉलिब्डेनम आयरन कंपोनेंट कहते हैं, इसमें मॉलिब्डेनम मेटल आयरन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। जैसा कि इस रिएक्शन से क्लियर है नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए जो नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन डोनर फेरोडॉक्सिन होता है, ये फेरोडॉक्सिन डायरेक्टली नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बल्कि जो फेरोडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन आयरन प्रोटीन कंपोनेंट को देता है जिससे आयरन प्रोटीन कंपोनेंट रिड्यूस होता है। आयरन प्रोटीन कंपोनेंट में आयरन होते हैं और ये आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं। जब फेरोडॉक्सिन इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो आयरन रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो रिड्यूस आयरन प्रोटीन कंपोनेंट होता है एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एनर्जी लेता है और एक्टिवेट होता है। अब ये रिड्यूस और एक्टिवेटेड आयरन प्रोटीन कंपोनेंट ऑक्सीडाइज मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कंपोनेंट को रिड्यूस करता है और अपने फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये जो रिड्यूस मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ये जो है हाइड्रोजन आयन और जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसके हेल्प से नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है और नाइट्रोजन के रिडक्शन पे जो है अमोनिया और हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एज ए प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरह से जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स के द्वारा नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया में कर दिया जाता है और इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि एक जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके लिए 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी की ज़रूरत होती है। ये जो अमोनिया आपका जो है जो प्रोड्यूस होता है फिर इसे जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको रिलीज़ कर देते हैं और फिर अमोनिया को जो है हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नाउ फेट ऑफ अमोनिया फॉर्म। जो अमोनिया फॉर्म होता है उसका आगे क्या होता है, प्लांट में कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसे कहते हैं फेट ऑफ अमोनिया फॉर्म। देखिए जो अमोनिया फॉर्म होता है उसे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं या अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं।
ये जो अमोनियम आयन जो होता है प्लांट के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए प्लांट इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इमीडिएटली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए जिसका प्लांट जो आसानी से यूटिलाइजेशन कर सकें और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें जो है अदर पार्ट में। इसके लिए प्लांट जो अमोनियम आयन प्रोड्यूस होता है इसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। इसके लिए जो NADH की भी जरूरत होती है। एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, जिससे जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके जो है ग्लूटामेट बना लेता है। ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है क्योंकि इस ग्लूटामेट से बाकी और एमिनो एसिड सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस। ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप कीटो ग्रुप जो कीटो एसिड होते हैं उनके कीटो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। मतलब भी ये होता है ट्रांस एमिनेशन का कि एमिनो ग्रुप का एक एमिनो एसिड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफ़र करना ताकि वो किसी और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। तो जो आपका जो है ग्लूटामेट बनता है इससे जो है बहुत सारे जो एमिनो एसिड जो है सिंथेसाइज होते हैं। ऐसे देखिए जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का भी रिएक्शन जो है अमोनियम से कराया जाता है, अमोनियम आयन से, और एस्पार्टिक एसिड बनते हैं। एस्पार्टिक एसिड से भी फिर जो है बाकी के जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो बनते हैं इनका फर्दर रिएक्शन जो है अमोनियम आयन से करा करके एमाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे ग्लूटामेट का रिएक्शन जब अमोनियम आयन से करते हैं तो ये ग्लूटामाइन एक एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एस्पार्टेट का रिएक्शन जो हम अमोनियम आयन से कराते हैं तो एक एमाइड एस्पैराजाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों जो हैं आपके जो एमाइड होते हैं इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट हाई होती है और ये ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिसका प्लांट यूज़ करते हैं रूट से सूट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए थ्रू द जाइलम। मतलब कि जब ये जो है आपके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड अमोनियम आयन सिंथेसाइज होते हैं तो उसको जो है ग्लूटामाइन और एस्पैराजाइन नाम के एमाइड में नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो अमोनिया बनती है, अमोनियम आयन बनते हैं, इसको जो है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ग्लूटामाइन या एस्पैराजाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन को इन्हीं के फॉर्म में जो है रूट से सूट की तरफ जो है जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए जो नाइट्रोजनस कंपाउंड का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में दो फॉर्म में किया जाता है एज एमाइड। एमाइड के फॉर्म में जो है ग्लूटामाइन और एस्पैराजाइन के फॉर्म में जो है आपका जो है रूट या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है ग्लूटामाइन और एस्पैराजाइन नाम के एमाइड के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो प्लांट जो है ग्लूटामाइन और एस्पैराजाइन के फॉर्म में या एमाइड के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल पी है। पी का जो बॉटनिकल नेम पाइसम होता है, लेंटिल एटसेट्रा है। दूसरा जो फॉर्म होता है जिस फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट बॉडी में रूट से बाकी पार्ट में, ये होता है आपका जो यूरिएड। यूरिएड जो होते हैं ये यूरिया से डिराइव कंपाउंड होते हैं जिसमें यूरिया का हाइड्रोजन किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिक ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। यूरिएड्स के फॉर्म में जो है आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड जिस प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका एग्जांपल सोयाबीन है, ये NCERT में भी दिया गया है, और पीनट है। तीन दो फॉर्म में जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो है रूट से बाकी पार्ट में आपका जो है ट्रांसफ़र किया जाता है।
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। पहला है लेग हीमोग्लोबिन इज O2 स्कैवेंजर। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजनेज एंजाइम हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए जो है ऑक्सीजन उसको डैमेज कर सकता है। और चूंकि जो है राइजोबियम बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया होता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जो है रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है और ये जो हॉर्स सेल के थ्रू बनाया जाता है, मतलब कि लेग्यूम प्लांट के थ्रू बनाया जाता है। रूट नोड्यूल में जो ऑक्सीजन इंटर करता है, लेग हीमोग्लोबिन उसे बाइंड कर लेता है। इस तरह से फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन नहीं होता है और लेग हीमोग्लोबिन डायरेक्टली बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है रिस्पायरेशन के लिए। इस तरह से लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और बाइंड करने से जो है ऑक्सीजन जो होता है फ्री फॉर्म में नहीं होता है रूट नोड्यूल के अंदर, जिससे जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम डैमेज नहीं होने पाता। सेकेंड पॉइंट होता है द नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्म ऑफ राइजोबियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोइड। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्म होता है राइजोबियम का, उसे बैक्टीरियोइड कहते हैं। और नाइट्रोजन से थर्ड पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अमोनिया बनता है। इलेक्ट्रॉन डोनर नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर फेरोडॉक्सिन होता है। मतलब फेरोडॉक्सिन का ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के रिडक्शन में यूटिलाइज होता है। और फिफ्थ है 8 इलेक्ट्रॉन और 16 ATP की जरूरत होती है 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए अगर एक मॉलिक्यूल्स अमोनिया की अगर बात की जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन और 8 ATP की जरूरत पड़ेगी। पी लेंटिल यहाँ छूट गया है, लेंटिन AMI ट्रांसपोर्टर होते हैं। मतलब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो सिंथेसाइज होते हैं वो एमाइड में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं रूट से सूट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पी और लेंटिन में, इसलिए इसे एमाइड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। और सोयाबीन और पीनट में जो है ये जो आपके यूरिएट ट्रांसपोर्टर होते हैं, मतलब इसे यूरिएट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। निफ जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के दोनों कंपोनेंट आयरन प्रोटीन कंपोनेंट, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट जरूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अकेले कोई भी कंपोनेंट नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।